Hello everyone and welcome to Unacademy platform. So let's crack NEET PG. Myself Dr. Muskan Chaudhary and I will be your mentor for NEET PG Microbiology. So today we'll be talking about the genetic gene transfer within the bacteria, and before that let me acknowledge you with the Unacademy platform. As we know that the Unacademy is the India's largest learning platform with it gives the daily live class and in which the student and the educator can interact with themselves, can ask their doubts and queries, and that too within the live class can do the answer polling, and along with this give the daily live test and quizzes in which the student and the doctors who are working can evaluate their preparation with regular mock tests and can analyze their performance, right? And we completed the whole 19 subjects within 5.5 to 6 years, and to complete the same course within 8 to 9 months of period of time is something that is challenging, and structured course is something that is needed for that. Okay, and along with this the doctors who are working at the peripheries, and they can keep the session recorded so they can watch their sessions whenever they feel like, whenever they have the time, because along with the working to manage the time is something that is a very big challenge. And I will recommend you to have at least 1 to 2 year of subscriptions. 1 year subscriptions mainly for those students who are the interns and the post interns, are the droppers, and do want to improve their rank in the successive year. And 2 year subscriptions mainly for those doctors who are working at the periphery and who are married and do have a little amount of time, and they want to effectively use their time and they are not very sure about the rank this year, so they can just take the 2 month subscription. And please do use my code, that is Muskan, to get 10% of benefit on the NEET PG subscriptions, right? Now moving next, before talking about the genetic transfer, we will talking some important short topic from the general microbiology. The first one is the capsule. Now capsule, what is capsule? Capsule is a well defined layer around the cell wall of the bacteria, and the nature is very important. Okay, and the nature is very important, that it is polypeptide in nature. But what is the exception? ये तो polypeptide होता है, but एक exception है, कौन सा? Bacillus anthracis. And it is what? It is polysaccharide in nature. While the capsule is polypeptide in nature, but Bacillus anthracis have the polysaccharide capsule. Along with this capsule, because it acts as a extra wall apart from the cell wall, so it acts as a virulence factor, and apart from this it is antigenic in nature and act as a virulence factor for the bacteria. Along with very important point is that it do not have charge, that it has no net charge, and therefore it do not have charge. We cannot stain the capsule with either acid and base, therefore we stain the background and we use the negative stain, that is Indiana ink or Nigrosin stain. We use the negative stain to stain the background because we cannot stain the capsule, therefore the capsule in the black background will appear as hollow, right? And it is antigenic in nature, and the specific reaction to demonstrate the capsule is the quelling reaction that we demonstrate by the specific antibody, and the antigenic reaction will shown by the capsule, therefore the capsule will swallow, and this is how the capsule will appear. And this reaction, the name of the reaction is very important, it is the quelling reaction, right? And what are the important capsulated bacteria? The examples are very important, that yes, some bacteria have killer and mean capsule, ठीक है? Then Y से क्या है? Y से Yersinia, Streptococcus pneumococci, Bacteroides fragilis, H. influenza, Klebsiella, Anthrax bacillus, Neisseria meningitis, and Clostridium perfringens. Apart from this, as I told you that it does not have any net charge, but Bacteroid fragilis shows the zwitterionic, that is it has both positive and the negative charge. Apart from this, as I told you, the capsule is antigenic, but here also one exception, that is Bordetella pertussis
हैव द एंटीजेनिक कैप्सूल, ठीक है। एंड वन एक्सेप्शन वॉज कि पॉलीपेप्टाइड नेचर में होता है, लेकिन बैसिलस एंथ्रेसिस हैज़ पॉलीसैकेराइड in nature, but Bacillus anthracis is what? Polypeptide in nature, right? As we saw that it is a polysaccharide, but Bacillus anthracis is what? Polypeptide in nature. So this was about the capsule कि capsule एक well defined layer होती है, polysaccharide होता है, polypeptide Bacillus anthracis होता है, important valence factor होता है, हम stain नहीं कर सकते, कोई charge नहीं होता, इसलिए हम background stain करते हैं by the negative stain, and it is antigenic in nature, right? And the exception for the antigenic this purchases, and the quelling reaction is seen to see the capsule. Important capsulated bacteria are, yes, some bacteria have a Keller and mean capsule, and the Bacteroides fragilis has was both positive and negative ion, that it is Zwitter ionic capsule. Now coming to the glycocalyx, as we know that what we saw कि capsule क्या था, capsule एक well defined layer था, ठीक है, अराउंड द सेल वॉल. नाउ ग्लाइकोकैलिक्स प्रोड्यूस बोथ द कैप्सूल और द स्लाइम. इफ इट इज़ वेल डिफाइंड इट इज फॉर्म्स द कैप्सूल, एंड इफ इट इज़ इल डिफाइंड this will give the slime layer. Now what is slime layer? क्या होता है? biofilm बनाता है glycocalyx ill defined, and it will collectively called as the slime layer, right? And it causes the addition of the bacteria, therefore it is important, and it is anti-phagocytic in nature, and therefore it also acts as a valence factor and have the adhesive property. Now what are the important bacteria that shows the this shows the slime on glycocalyx? That is the Streptococcus mutans, Staph epidermis, and Pneumococcus aeruginosa. Now these three examples are important. One thing is that Pneumocystic aeruginosa causes the cystic fibrosis, और जो patient होते हैं cystic fibrosis उसमें क्या होता है? algid होता है, और algid हम किसको कह रहे हैं? slime को ही हम algid कह रहे हैं. That is the collection of the slime in the lung, and we call that as algid, right? So these are the examples of the this slime layer. Slime producing bacteria, that is streptococcus, एक staph है, staph epidermis है, एक streptococcus mutans है, और एक pneumocystic aeruginosa. Now coming to the flagella. Now flagella is a special structure of the bacteria, that it is an organ of locomotion, ठीक है. एंड क्या होता है? फ्लैजिला किसका बना होता है? फ्लैजिलम प्रोटीन का बना होता है, ठीक है. एंड इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं. एक तो होता है फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी, दैट इज फिलामेंट हुक एंड द बेसल बॉडी. और क्या होता है इसमें 4, अगर ये ग्राम पॉजिटिव है तो 2 रिंग्स होंगी, दैट इज एम एंड एस, कैन बी रिमेंबर्ड. ग्राम पॉजिटिव मतलब प्लस साइन, 2 डंडों से बन रहा है, 1 and 1, तो 2 ही रिंग होगी, एम एंड एस, एंड अनदर इज एम एस पी एल इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर. एंड फ्लैजिला अराइजेज फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, दैट इज ये बैक्टीरिया है, अंदर से ऊपर से सेल वॉल है, एंड दिस इज हाउ द फ्लैजिला विल अपीयर फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एंड दे आर द ऑर्गन ऑफ द लोकोमेशन. सो द इम्पॉर्टेंट वर द रिंग्स की 2 रिंग्स होती, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में 3 रिंग. नाउ कमिंग टू द फ्लैजिलर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट. मोनोट्राइकस का मतलब है एक फ्लैजिला, एंड दैट इज शोन बाय द स्यूडोमोनास. लोफोट्राइकस का मतलब, सॉरी दिस इज वन फ्लैजिला, इसका मतलब टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, एंड दैट इज शोन बाय द एच पाइलोराई. एम्फीट्राइकस मतलब कि दोनों तरफ, दैट इज शोन बाय द कैम्पाइलोबैक्टर. पेरिट्राइकस मतलब सब तरफ, दैट इज बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम एंड ऑल एंटीरोबैक्टीरियाceae फैमिली. बट इफ यू रिमेंबर दैट आई हैव टोल्ड यू दैट इन द एंटीरोबैक्टीरियाceae फैमिली सैसे इज रिजिड, दैट इज सैसे इज नॉन मोटाइल. सैसे में क्या क्या है? दिस शिगेला, एटिपिकल इकोलाई, दैट इज एंट्रो इन्वेजिव इकोलाई, एंड यार्सिनिया, और सैल्मोनेला वैसे तो मोटाइल है, बट सैल्मोनेला गैलेनोरम,
ओके। सो मोनोट्राइकस मतलब एक फ्लैजिला, लोफोट्राइकस मतलब कि टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, गुच्छा जिसको बोलते हैं, एम्फीट्राइकस मतलब दोनों तरफ, एंड द पेरीट्राइकस मीन्स ऑल अराउंड द सर्फेस ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल मोटिलिटी एग्जाम्पल्स टू रिमेंबर बाय द नेम इज इम्पॉर्टेंट कि कॉर्कस्क्रू मोटिलिटी होती है वो किस में होती है, ट्रेपेनोमा पैलिडियम में होती है, ठीक है। एंड डार्टिंग मोटिलिटी दैट इज प्रेजेंट इन द विब्रो एंड द कैम्पाइलोबैक्टर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया। स्टेटली मोटिलिटी कैन बी रिमेंबर्ड कि ये सैल्मोनेला में होती है और किस में होती है, क्लॉस्ट्रीडियम में। ग्लाइडिंग आई थिंक यू रिमेंबर कि ये माइकोप्लाज्म में होती है। टम्बलिंग होती है लिस्टीरिया में, ठीक है। ट्विचिंग होती है इकिनेला में, और स्वामिंग होती है बाय TBC दैट इज क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी प्रोटियस एंड द बैसिलस सीरियस। बैसिलस सीरियस, टिटेनी एंड this proteus, right? They all show the swarming motility, that is TPC, okay, that is the Titani, Sirius and the Proteus, right? So this is how it can be remembered कि corkscrew motility ट्रैपेनोमा पैलिडियम में है, डार्टिंग विब्रियो में है, स्टेटली सैल्मोनेला में है, ग्लाइडिंग माइकोप्लाज्म में है, टम्बलिंग लिस्टीरिया में है, एंड ट्विचिंग इज प्रेजेंट इन द इकिनेला. Now coming to the another important structure, that is the pili or the fimbriae. ठीक है, पिली क्या होता है, पिली इज ऑल्सो द प्रोटीन इन नेचर, एंड प्रोटीन इसमें क्या है, पाइलिन है, दैट इज द सब यूनिट इज द प्रोटीन, दैट इज द पाइलिन. एंड पिली आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो होता है कॉमन पिली एंड अनदर इज द सेक्स पिली. ओके, नाउ कॉमन पिली का काम क्या है, एडिशन, और सिर्फ ग्राम नेगेटिव है. सेक्स पिली दैट इज प्रेजेंट इन बोथ द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, एंड सी फर्दर कि कॉन्जुगेशन में पार्ट लेता है. देयरफॉर द सेक्स पिला इज प्रेजेंट इन द बोथ while the common is present in the gram negative only. Now coming to the L form of the bacteria, L form क्या होता है, cell wall deficient bacteria है, and it was demonstrated by the Griffith on Streptobacillus. It is important to remember कि Streptobacillus पे एल फॉर्म बैक्टीरिया एक तो क्या होता है, सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया है, दूसरा किसने दिया था, स्ट्रेप्टोबैसिलस पे ग्रिफ्थ ने डिस्कवर किया था, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द रैट बाइट फीवर. ऑल्सो कि जो एल फॉर्म है दोनों फॉर्म स्टेबल, एक तो स्टेबल और अनस्टेबल दोनों फॉर्म है, एंड इट में ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली अराइज या फिर इसको लैब में बनाया जा सकता है, एंड इट इज़ नॉन पैथोजेनिक दैट कैन बी सीन बाय द naked eye in the culture media. So this is important कि तो एल फॉर्म सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया होता है, ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था, एंड ऑन द स्ट्रेप्टोबैसिलस, एंड इट इज हैज़ द बोथ स्टेबल एंड द अनस्टेबल फॉर्म, एंड कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी एंड कैन बी सीन बाय द नेकेड आई. नाउ कमिंग टू द स्पोर्स, स्पोर्स क्या होते हैं, डॉर्मेंट स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का. जैसे एनवायरनमेंट अनसूटेबल हुआ, न्यूट्रिशन ख़त्म हुआ, द बैक्टीरिया मेक्स द स्पोर एंड इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द हार्श एनवायरनमेंट. ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट फेवर होगा इट विल डेवलप इनटू द वेजिटेटिव फॉर्म. ठीक है, तो दिस इज वाई द स्पोर इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द हार्श अनन्यूट्रिशन एनवायरनमेंट. एंड स्पोर दो जगह प्रेजेंट होता है, वन इज द बैसिलस एंड अनदर इज द क्लोस्ट्रीडियम. ठीक है, लेकिन बी में बी नहीं है, मतलब बी में बी नहीं है, मतलब बी में बल्जिंग स्पोर नहीं है, बी में नॉन बल्जिंग स्पोर है. ठीक है, और क्लोस्ट्रीडियम में बल्जिंग स्पोर है. ठीक है, एंड क्लोस्ट्रीडियम में आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लास कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी में कैसा होता है, और अलग अलग क्लोस्ट्रीडियम की जो वेराइटी है उसमें कैसा स्पोर होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो दिस इज द बैसिलस शोइंग द नॉन बल्जिंग स्पोर, and this is the bulging spore of the Clostridium bacteria. ओके, सो मूविंग नेक्स्ट. अब क्या होता है कि स्पोर के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं. सबसे अंदर क्या होगा, कोर. इस कैन बी रिमेंबर्ड, कोर का मतलब भी होता है सबसे अंदर, सबसे डीप. तो कोर इज़ द डीपेस्ट, सबसे इनर मोस्ट जो होगा. उसके बाद क्या है, कोर के ऊपर क्या होगा, वॉल. ठीक है, उसके ऊपर कोट,
इट कैन बी रिमेंबर कि हम कोट सबसे ऊपर पहनते हैं तो कोट ऊपर आएगा और उसके बाद में एक्सोस्पोरियम, एक्सोस्पोरियम का मतलब ही सबसे लास्ट बाहर है. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि एक्सोस्पोरियम कहाँ आएगा, बट सीक्वेंस कोर सबसे अंदर, फिर वॉल होगी और फिर कोट होगा ना. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ द कोर, कोर में क्या होता है, कैल्शियम डिपिकोलिनेट होता है दैट प्रोवाइड्स द हीट रेजिस्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पोर as well as the glycolytic enzymes. So the core contains the glycolytic enzymes as well as calcium dipicolinate. Now coming next to the spore wall. Spore wall is the typical peptidoglycan layer, and as we know that the typical this peptidoglycan layer forms the cell wall, that is the important constitution of the cell wall to forms the future cell wall. ठीक है. अगला क्या है, स्पोर कॉर्टेक्स और फिर स्पोर कोट. तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, ए टिपिकल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, एंड इम्पॉर्टेंट इज टू रिमेंबर कि कॉर्टेक्स इज द थिकेस्ट. ओके, सो यू कैन रिमेंबर कि टी आ रहा है तो इट इज़ द थिकेस्ट लेयर एंड कॉर्टेक्स इज द थिकेस्ट लेयर. एंड फिर ऊपर हम पहनेंगे कोट, दैट इज केराटिन, एंड कोट इज मेड अप ऑफ, हम जो कोट पहनते हैं दैट इज डेड मटेरियल, कैन रिमेंबर कि इट इज मेड अप ऑफ द केराटिन लेयर एंड प्रोवाइड केमिकल डिसइंफेक्शन. नाउ लास्ट इज द एक्सोस्पोरियम. तो क्या क्या हुआ, कोट हुआ, फिर वॉल हुई, फिर कॉर्टेक्स हुआ जो कि थिकेस्ट होती है, एंड लास्ट में कोट एंड एक्सोस्पोरियम. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्लाज्मिड. दिस इज इम्पॉर्टेंट. प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल material, extra chromosomal material, and it is what, double stranded DNA. ठीक है. and it is circular, that is present in the cytoplasm. as you can see these are circular, double stranded और present किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म. अब ज़रूरी नहीं कि एक बैक्टीरिया में एक ही प्लाज्मिड हो. इट कैन हैव 1 to 40 many number of plasmids, and the plasmids are not essential for the life of the bacteria. अगर plasmid है बैक्टीरिया में तो एडवांटेज है, नहीं है तो भी चलेगा. so they are not important for the survival of the bacteria and they can replicate independently. डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं होता. दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड वी विल सी इन द कॉन्जुगेशन कि वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होकर दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है. एंड व्हाट इज़ वन प्रोसेस इज़ द क्यूरिंग. क्यूरिंग क्या होता है, इट इज़ द लेबोरेटरी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हम प्लाज्मिड को एलिमिनेट कर देते हैं बैक्टीरिया से. सो दिस इज़ द क्यूरिंग. ठीक है. तो प्लाज्मिड क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मटेरियल हुआ दैट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, एंड 1 to many plasmids may be present within the same bacteria, and it is independent of the replication of the chromosome, can replicate independently. Now moving next, now क्या होता है कि जो प्लाज्मिड दैट इंटीग्रेट विद द क्रोमोसोम, जैसे कि बैक्टीरिया है, प्लाज्मिड है, क्रोमोसोम है. प्लाज्मिड मैंने क्या कहा कि दूसरे बैक्टीरिया में भी जा सकता है, एंड इट में इंटीग्रेट विद द क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरिया या फिर सेम बैक्टीरिया. नाउ दिस विल कॉल एज द एपिसोम. ठीक है. एपिसोम मीन्स प्लाज्मिड प्लस क्रोमोसोम. ठीक है. अब क्या होता है, प्लाज्मिड के ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस इट हैज़ बीन फर्दर बीन क्लासिफाइड कि एफ प्लाज्मिड है या फर्टिलिटी प्लाज्मिड है या सेक्स प्लाज्मिड है. ठीक है. अब जिन बैक्टीरिया में ट्राजीन्स होगी उन्हीं के पास एफ प्लाज्मिड होगा, और एफ प्लाज्मिड का क्या फ़ायदा होता है कि एफ प्लाज्मिड हेल्प्स टू ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर. सो एफ प्लाज्मिड और द सेक्स प्लाज्मिड or the conjugation plasmid, fertility plasmid have the ability to form plasmids and necessary for the plasmid transfer. जिनके पास ट्रा जीन्स होगी वही एफ प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करके दूसरी बैक्टीरिया में भेज सकते हैं, राइट. एंड द रेजिस्टेंट प्लाज्मिड दैट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स लाइक द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, फ्लोरोक्विनिनोज एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स. एक होता है कोल प्लाज्मिड्स, विल रीड फर्दर. कोल प्लाज्मिड्स क्या होते हैं कि कॉलिसिन बनाने में हेल्प करेगा, बैक्टीरियोसिन. ना व्हाट इज़ बैक्टीरियोसिन. बैक्टीरियोसिन क्या होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जो उस बैक्टीरिया से रिलीज होंगे in the surrounding, and it inhibits the growth of the other similar bacteria. क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो अगर न्यूट्रिशन लिमिटेड है तो वो नहीं चाहता कोई दूसरा बैक्टीरिया भी ग्रो करे. सो इट विल इनहिबिट द सराउंडिंग बैक्टीरिया बाय रिलीजिंग द बैक्टीरियोसिन.
and that is produced have the genetic properties present in the cold plasmid, right? जैसे कि colicin by the E. coli and the Shigella, diphtheria by the diphtheria, and another is the virulence plasmid that have the certain virulence factors कि like toxin release करना या फिर एडिसन बनाना. Okay, so this is how the classification is done on the basis of the functions कि fertility plasmid है, sex plasmid है, या फिर ना cold plasmid है, या फिर diphtheria this रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है. नाउ एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि पहले कि प्लाज्मिड को हम एज ए वैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट एंड एबिलिटी टू ट्रांसफर फ्रॉम द वन बैक्टीरिया टू द अनदर. देयरफॉर इसको वैक्टर की तरह यूज़ कर सकते हो टू ट्रांसफर द डिज़ायर्ड डीएनए फ्रॉम वन to one cell to another that have become important in the genetic engineering, right? And such plasmids can be used for the protein production and for the gene therapy. Now we have seen the cold plasmid. Cold plasmid क्या था? जो बैक्टीरिया कोलिसिन बनाएंगी, this will inhibit the growth of the similar bacteria in the same surrounding. So cold plasmids are the genes that code for the protein toxins that can kill another similar bacteria. Now we'll come to the genetic transfer, gene transfer in the bacteria. ओके, नाउ कमिंग टू द जीन ट्रांसफ़र इन द बैक्टीरिया. क्या होता है कि जीन ट्रांसफ़र को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ द वर्टिकल एंड अनदर इज़ द हॉरिजॉन्टल. नाउ वर्टिकल मीन्स वर्टिकली मूव करा, मतलब कि एक ट्रांसफर जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. हॉरिजॉन्टल मतलब बैक्टीरिया के ही बीच में ट्रांसफर ऑफ जीन का, दैट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर नेबरहुड बैक्टीरिया, right? So these are the two methods of the genetic transfer, and the horizontal gene transfer occurs in the bacteria. हम जो पढ़ेंगे transformation, transduction, lysogenic conversion and the conjugation. Okay, now starting first with the transformation. Now transformation was discovered by the Griffith on Streptococcus pneumococci और pneumococcus, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था स्ट्रेप्टोकोकस पे. और क्या होता है, एक एबिलिटिव कॉम्पिटेंस होता है, मतलब कि इतनी सारी बैक्टीरिया और नॉट ऑल द बैक्टीरिया विल एक्वायर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि द बैक्टीरिया डायरेक्टली टेक द अपटेक ऑफ द डीएनए फ्रॉम द फ्री नेकेड डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट. कोई बैक्टीरिया इट्स गोइंग टू डाई on unfavorable environment, we release its DNA into the environment, and that DNA will be uptaken by the neighborhood bacteria from the surrounding environment, right? And this ability is called as the competence, and this ability is what is called as the competence. मतलब कि जो competent bacteria है वही ले सकती है DNA को. Incompetent bacteria will not have the ability to take the DNA bacteria even if though it's present free in the environment, right? And it was discovered by the Griffith on the Streptococcus pneumococci. Now what is transformation? We have already told कि transformation क्या होता है, random uptake of the free or the naked DNA from the surrounding media by the bacterial cells and incorporates that DNA into its own chromosome into heritable form, right? So एक bacteria hand free chromosome will be given by the dying bacteria, so it will be taken by the bacteria and it will be incorporated in its own chromosome, and that will be transferred to the offsprings. Now अब कमिंग टू द ट्रांसडक्शन. नाउ पहले ट्रांसडक्शन से पहले बैक्टीरियोफेज का रोल क्या होता है ट्रांसडक्शन में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ बैक्टीरियोफेज इज़ एन वायरस, ठीक है, दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरियोफेज मतलब फेज मतलब कि वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया. होता क्या है कि बैक्टीरियोफेज इटसेल्फ कैन नॉट मूव इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया. देयरफॉर जैसे बैक्टीरियोफेज आया, इट विल रिलीज इट्स डीएनए इनटू द होस्ट सेल इनटू द बैक्टीरिया. डिपेंड करता है जो डीएनए रिलीज़ हुआ है वो बैक्टीरिया का लाइसिस करेगा या फिर बैक्टीरिया को लाइसोजेनिक कन्वर्जन करेगा. अब ये क्या होता है, विल रीड फर्दर. देखो दो साइकिल होती है, एक तो लाइटिक होती है, एक लाइसोजेनिक होती है. जैसे कि दिस वॉज द बैक्टीरिया, ठीक है, एंड बैक्टीरिया में क्या होगा कि दिस डीएनए इज रिलीज्ड इनटू द
this DNA of the bacteriophage is released into the bacterial cytoplasm, and this what will happen ki the DNA will incorporate into the cytoplasm of the bacteria, and क्या करेगा जो फिर क्या होता है कि जो बैक्टीरियल डीएनए है इट टेक्स ओवर द मेटाबॉलिज्म एंड द एंजाइम्स ऑफ द होस्ट सेल बैक्टीरिया, दैट इज होस्ट सेल बैक्टीरिया, एंड विल कॉज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए। तो क्या होगा, जो बैक्टीरियल डीएनए था और क्रोमोसोम था उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, एंड द होस्ट दिस बैक्टीरियल फेज डीएनए खुद का अपने वीरियंस बनाएंगे, खुद के अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, खुद के अपने क्रोमोसोमल मटेरियल्स बनाएंगे, एंड द डॉक्टर वीरियंस विल बी रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग एंड कॉजिंग द लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया। तो इसको क्या बोलेंगे, लाइटिक सेल साइकिल बोलेंगे, एंड दैट इज शोन बाय द T1 एंड T2 फेज ऑफ ई कोलाई। ठीक है, तो लाइटिक का मतलब लाइसिस करना, तो अपना काम किया और बैक्टीरिया को मार दिया, मतलब खुद के अपने डॉटर वीरियंस बनाए और बैक्टीरिया को डिसइंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, एक होता है लाइसोजेनिक कन्वर्जन, लाइसोजेनिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि पहले ही इट विल यूज़ द बैक्टीरिया फिर इट्स ऑन पर्पस। क्या करेगा कि जो होस्ट जैसे डीएनए, जो बैक्टीरियल फेज जो डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बैक्टीरियल डीएनए के साथ। अब इसको बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, लाइसोजेनिक कन्वर्जन, क्योंकि क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है इसका लाइसिस नहीं करेगा बैक्टीरियल फेज डीएनए जो है, दैट डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल डीएनए, एंड वो एक एज ए एंटायर बॉडी अपने ही बैक्टीरियल सेल्स को आगे जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ट्रांसफ़र होता जाएगा हेरिटेबल फॉर्म में, आगे जाके ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल, और लाइसोजेनिक कन्वर्जन होगा बैक्टीरिया का। ठीक है, तो ये ऐसे ऑफस्प्रिंग टू ऑफस्प्रिंग बैक्टीरियल फेज डीएनए कंटिन्यू होता रहेगा बैक्टीरियल सेल्स के अंदर और उसकी ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर यूवी लाइट है या नाइट्रोजन मस्टर्ड के प्रेजेंस में क्या होगा कि जो बैक्टीरियल फिश डीएनए जो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेटेड है वो अलग हो जाएगा, और वो अलग हो जाएगा तो वापस वही फ्रेगमेंटेशन करेगा और लाइसिस कर देगा बैक्टीरिया का, खुद अपने वीरियंस बना के निकल लेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द इंडक्शन ऑफ फेज। ठीक है, इंडक्शन ऑफ फेज जो कि यूवी लाइट या अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में होगा। ठीक है, एंड दिस लाइसोजेनिक साइकिल इज शोन बाय द अगेन शोन बाय द लैम्डा फेज ऑफ द ई कोलाई। ठीक है, अब लाइटिक साइकिल को अपन वायरुलेंट साइकिल भी कहते हैं, वायलेंट बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली वायलेंट टू द बैक्टीरिया, एंड लाइसोजेनिक साइकिल को अपन टेम्परेट फेज भी कहते हैं। एंड वन मोर थिंग, टेम्परेट फेज में दोनों एबिलिटी है। ठीक है, वो लाइटिक में भी कन्वर्ट हो सकता है और लाइसोजेनिक साइकिल में भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कि वो एंड में जाके बैक्टीरिया की सेल का लाइसिस भी कर सकता है वीरियन बना के, और कैन यूज़ द बैक्टीरिया टू ट्रांसफर इट्स डीएनए इनटू द होस्ट ऑफस्प्रिंग्स, राइट। सो टेम्परेट फेज, so lytic or the violent cycle, that is the multiply in the host cytoplasm, produce large number of progeny and lysis करने के बाद it's released into the environment। तो लाइटिक का मतलब कि बैक्टीरिया को मारा और अपना काम निकाल के चल लिया, राइट। दिस इज द लाइटिक और द वायलेंट साइकिल। और लाइसोजेनिक में क्या होगा कि द वायलेंट साइकिल तो होस्ट बैक्टीरिया को इनहार्म्ड है, पहले तो अनहार्म्ड है, डीएनए जो होगा फेज का वो इंटीग्रेट होगा बैक्टीरियल डीएनए के साथ, और एज ए प्रो फेज उसको कहेंगे पूरे को, और इसको कहेंगे लाइसोजेनिक कन्वर्जन, और आगे जाके वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफ़र कर देगा बैक्टीरियल डीएनए के साथ। सो इट इज़ डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम, कम्स आउट इनटू द साइटोप्लाज्म, बिहेव्स एज एन लाइटिक फेज when the in the unfavorable environment that we have seen. So it replicates the daughter phage where are subsequently released by the host cell lysis. So this is the continuation कि पहले तो लाइसोजेनिक फेज में है और बाद में वो लाइटिक फेज में भी जा सकता है, and this is what it is the temperate cycle. Now we'll talk about the transduction. देखो ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन इज द ट्रांसमिशन, ट्रांस मतलब ट्रांसमिशन, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर बैक्टीरिया, ठीक है, थ्रू द बैक्टीरियोफेज। हमने अभी क्या देखा था कि बैक्टीरियोफेज जाके इन्फेक्ट कर रहा है होस्ट सेल को। यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली इन दिस कि हमने क्या देखा था कि होस्ट सेल में अपना डीएनए रिलीज़ किया, उसने डिसइंटीग्रेट किया, फ्रेगमेंट किया बैक्टीरियल डीएनए को, खुद का अपने डीएनए बनाया
और खुद का अपना डीएनए बनाता है, तो कई बार क्या करता है वो बैक्टीरियल का डीएनए जो फ्रेगमेंटेड पीसेज में, टुकड़ों में, उसको भी एक्वायर कर लेता है। तो उसको अपन मिस पैकेजिंग कहते हैं और डिफेक्टिव, ऐसा होना नहीं चाहिए था बट इसको मिस पैकेजिंग और डिफेक्टिव एरर कहेंगे। और चाहे अनचाहे वो अगली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो जो बैक्टीरियल की जो प्रॉपर्टी उसने एक्वायर कर ली, बैक्टीरिया का जो डीएनए उसने ले लिया, वो आगे वाली बैक्टीरिया को भी ट्रांसफ़र कर देगा। इसको अपन मिस पैकेजिंग कहेंगे और इसको अपन ट्रांसडक्शन कहेंगे। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द ट्रांसडक्शन इज़ अबाउट। अब ट्रांसडक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जनरलाइज्ड एंड एक होता है स्पेशलाइज्ड। ठीक है, अब जनरलाइज जो हमने भी बात की थी वो जनरलाइज ट्रांसडक्शन है, मतलब कि जो बैक्टीरियल फेज जिसने इन्फेक्ट किया है किसी बैक्टीरिया को, अपना डीएनए मटेरियल रिलीज़ किया, खुद का बनाया और साथ में डीएनए के फ्रेगमेंटेड पीसेस को यूज़ कर लिया। ठीक है, तो उसने देखा नहीं कोई भी फ्रेगमेंट जो पड़ा है साइटोप्लाज्म, उसको यूज़ कर लिया। सो दिस इज़ हाउ द जेनेटिक ट्रांसडक्शन वर्क्स। और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होगा, दिस फेज डीएनए जब फेज डीएनए जब वीरियंस बनाएगा तो स्पेशलाइज्ड जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, उसी को ही एक्वायर करेगा, उसी को ही लेगा और उसी को ही ट्रांसफ़र करेगा। सो दिस इज़ अबाउट द स्पेशलाइज्ड। एज यू कैन सी कि जो पहले अपना डीएनए रिलीज़ किया, जाके ये इनकॉर्पोरेट हो गया बैक्टीरियल डीएनए के साथ, और फिर क्या हुआ कि इफ़ यू रिमेंबर कि लाइसोजेनिक साइकिल में वो पहले जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है वापस सेपरेट हुआ, सेपरेट से वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ था। तो यहाँ के आजू बाजू का मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का, सिर्फ वही उसने एक्वायर किया, सब कुछ एक्वायर नहीं किया, पूरा डीएनए मटेरियल एक्वायर नहीं किया। एंड दिस विल बी ट्रांसफर्ड इन द डॉटर वेरियंस। सो दिस इज द स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड इट इज शोन बाय द टेम्परेट फेज ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो डेफिनेशन थी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसडक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द बैक्टीरियोफेज फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, अ पार्ट ऑफ द होस्ट डीएनए may accidentally get incorporated in the bacteriophage and may be transferred to the recipient bacteria. This causes the acquire new characters by the recipient bacteria. So this is what we talked about right now. अब दो होते हैं, एक तो होता है generalized, एक होता है restricted. We have talked generalized मतलब कि कुछ भी ले लेगा डीएनए फ्रेगमेंट जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया का। restricted मतलब कि वो आजू बाजू जहाँ पे खुद ने incorporated था सिर्फ वही डीएनए मटेरियल एक्वायर करेगा। So only a particular genetic material, genetic segment of the chromosome that is present adjacent to the phage DNA is transduced. Just a second. Okay, so this was about the generalized and the specialized transduction. So ये bacterial chromosome है, ये अपना होस्ट बैक्टीरियल सेल है और ये डीएनए किसका, बैक्टीरियोफेज का, उसने डिसइंटीग्रेट किया बैक्टीरियल डीएनए को। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बैक्टीरियल के क्रोमोसोम को एक्वायर करे, वो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को भी एक्वायर कर सकता है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन तो पूरे जेनेटिक मटेरियल का हो रहा है बैक्टीरिया का। सो इट इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट कि इट विल एक्वायर ओनली द क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया, इट कैन ऑल्सो एक्वायर द प्लाज्मिड मटेरियल। सो दिस इज हाउ द पायलेंट फेज इज क्रिएटेड and breaks down the host DNA. Cell creates new phage including the host DNA and transducing phage inserts into the donor DNA. The donor DNA included in the recipient chromosome due to recombination. Now specialized transduction वही हुआ कि phage DNA integrates into the chromosome and prophage deintegrates. प्रोफेज क्या होता कि जो फेज डीएनए प्लस क्रोमोसोमल डीएनए, दैट वाज द प्रोफेज, एंड द प्रोफेज डीएनए से वापस हटा क्या, फेज का डीएनए, और साथ में लेके आया बैक्टीरियल डीएनए को, राइट, एंड दैट गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डॉटर वीरियंस एंड दैट इज पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, एंड आफ्टर द लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल. सो दिस वाज अबाउट द लाइटिक, लाइसोजेनिक एंड द स्पेशलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन. अब रोल क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रांसडक्शन? एक तो क्या हो रहा है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है. सो अगर एक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है तो दूसरी भी हो जाएगी. सो ड्रग रेजिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसडक्शन में भी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ द
genes coding for the drug resistance, जैसे कि we have already seen जैसे plasmid coded penicillin and the resistance of the staphylococci. What are the toxins that are plasmid coded? We'll just study in the next slide. And treatment transduction has also been approved for the genetic engineering. Now, what are the toxins that are plasmid coated, that is transferred by the plasmid, because plasmid takes parts in the conjugation and the genetic transfer. So it is important to remember, or can be remembered by the mnemonic A, B, C, D, E, S. ठीक है, ए से ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकाई, बी से बोटुलिज्म टॉक्सिन, सी से कॉलरा टॉक्सिन, डी से डिप्थीरिया टॉक्सिन, ई से एंट्रोहेमरेजिक इकोलाई टॉक्सिन और एस से शिगेला टॉक्सिन. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टेबल, इम्पॉर्टेंट टू निमोनिक कि कौन कौन से टॉक्सिन्स आर प्लाज्मिड मीडिएटेड. राइट, नाउ मूविंग टू द लाइसोजेनिक बैक्टीरिया. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि जब फेज का डीएनए आएगा वो बैक्टीरियल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. इसको पूरे को तो अपन बोलेंगे प्रोफेज डीएनए, और जो डीएनए का कन्वर्जन हो गया इसको बोलेंगे लाइसोजेनिक कन्वर्जन. क्योंकि अभी कभी तो लाइसेस हो नहीं रहा है बैक्टीरिया का, लेकिन बैक्टीरिया ने एक नया कैरेक्टर एक्वायर कर लिया, इट इज़ लाइसोजेनिक कन्वर्जन. एंड दिस सेम इनकॉर्पोरेटेड बैक्टीरिया के साथ जो फेज का जो डीएनए वो पूरा का पूरा अगले ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होगा, तो न्यू कैरेक्टर्स आएंगे. सो दिस इज लाइसोजेनिक बैक्टीरिया. ड्यूरिंग द टेम्परेट और द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल द फेज रिमेन्स इंटीग्रेटेड विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एज प्रोफेज, which multiplies with the bacterial DNA. The prophage act as an additional chromosome element which encodes for the new character and is transferred to the daughter cells. So this is what lysogeny or lysogenic conversion. We have already seen कि temperate phase में shown होगा या फिर lysogenic phase में. An example क्या था इसका? Lambda phase of E. coli. ओके, सो फेज कॉडेड टॉक्सिन हम ऑलरेडी निमोनिक देख चुके हैं, दैट इज ए बी सी डी ई, दैट इज ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकाई, बोटुलिज्म टॉक्सिन, कॉलेरा टॉक्सिन, डिप्थीरिया, ई एच ई सी और शिगा टॉक्सिन. राइट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लाइसोजेनिक कन्वर्जन. दैट इज क्या हो रहा है, फेज आया, फेज पूरा खुद अपने आप को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है, दैट इज कैनॉट एंटर द होस्ट सेल. देयरफॉर द डीएनए इज सेंट आफ्टर द रिसेप्टर्स आर बीन रिकग्नाइज्ड बिटवीन द बोथ द टू. ये बैक्टीरियल का डीएनए है, बैक्टीरियल के डीएनए के साथ फेज का डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ. एज यू कैन सी दिस इज द फेज डीएनए एंड द रेप्लिकेशन विल टेक्स प्लेस एज अ होल, और अपने डॉटर बैक्टीरियल सेल्स को ट्रांसफर हो जाएगा. तो न्यू कैरेक्टर्स विल बी ट्रांसफर्ड एज वेल. Okay, so this was about the this lysogenic conversion. और अगर यही फेज के पास वो किसी दूसरे बैक्टीरिया से आ रहा है, ठीक है, और उसके कैरेक्टर्स लेकर आ रहा है, ठीक है, दिस विल बी जनरलाइज ट्रांसडक्शन. और अगर है तो अगर स्पेशल उसने सिर्फ बैक्टीरिया के आजू बाजू के जो डीएनए मटेरियल एक्वायर किया, यही स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन हो गया. ठीक है, अगर पूरी साइकिल मिलाई जाए तो. सो दिस इज अबाउट द lysogenic conversion. Now coming to the conjugation, very important, another important, काफ़ी confusing होता है पूरा. So from the basics you have to start कि कैसे क्या होता है, both for the bacteriophage as well as the conjugation. Now conjugation किसने दिया था? Okay, I thought I was disappearing from the camera. Sorry. ओके, सो कॉन्जुगेशन किसने दिया था? कॉन्जुगेशन हमको दिया था लीडरबर्ग और टेटम ने, राइट. और किस पे दिया था? ई कोलाई K12 स्ट्रेन. इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, वरना आई वुड हैव नॉट टोल्ड यू. ठीक है, कॉन्जुगेशन किसने दिया था? लीडरबर्ग और टेटम ने दिया था. फॉर ऑन विच ऑर्गेनिज्म? दैट इज ई कोलाई K12 स्ट्रेन, right, and it is mediated by the sex pili formation. Now what is sex pili formation? We have seen कि दो पिलाई थे, एक तो कॉमन और एक सेक्स पिलाई. ठीक है, सेक्स पिलाई को अपन कॉन्जुगेशन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है, और इसको अपन फर्टिलिटी ट्यूब भी कहते हैं.
ठीक है। क्या होता है कि जिन बैक्टीरिया के पास F प्लाज्मेट है, ठीक है, जिसके पास F प्लाज्मेट उसको F पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे, और उनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है टू मेक अ कॉन्जुगेशन ट्यूब और द पाइलस ट्यूब और द सेक्स पिलाई, ठीक है। एंड वन स्ट्रैंड ऑफ द प्लाज्मेट दिस विल रेप्लिकेट एंड विल पास ऑन टू द नेबरहुड बैक्टीरिया। सो दिस इज व्हाट कॉन्जुगेशन इज अबाउट। क्या होगा कि एक प्लाज्मेट दूसरे प्लाज्मेट के थ्रू ट्रांसफ़र होना, एक प्लाज्मेट रेप्लिकेट होके ट्रांसफ़र करना अपना प्लाज्मेट टू द नेक्स्ट बैक्टीरिया थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो क्या होगा, जैसे कि बैक्टीरिया थी तो F पॉजिटिव बैक्टीरिया थी, फर्टिलिटी बैक्टीरिया थी, और ये F नेगेटिव बैक्टीरिया थी क्योंकि इसके पास तो कोई F प्लाज्मेट था नहीं, तो अगर ये ट्रांसफ़र हो गया तो ये भी F पॉजिटिव हो गई, मतलब कि F पॉजिटिव बैक्टीरिया प्लस F नेगेटिव बैक्टीरिया रिजल्ट इन 2 F पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी से। सो क्या हुआ, एन F पॉजिटिव सेल कंटेनिंग F प्लाज्मेट, F फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर, सेक्स फैक्टर, okay, comes close to the F negative cell, the F factor forms a conjugation tube through which the F factor is transmitted, ठीक है। एंड लैंग्वेज पढ़ने बहुत कंफ्यूजिंग है, जस्ट रिमेंबर कि एक प्लाज्मेट जब दूसरे प्लाज्मेट की तरफ गया, F प्लाज्मेट गया दूसरे नॉन प्लाज्मिक बैक्टीरिया की तरफ, तो वहाँ पे भी F प्लाज्मेट आ गया तो F पॉजिटिव सेल हो गया, दैट इज़ दोनों विल बी F पॉजिटिव बैक्टीरिया। Now coming next to the R plasmid, and now coming to the R plasmid, अब R plasmid क्या होता है, एज आई टोल्ड यू कि प्लाज्मिड में क्या होता है, एक तो हमने पढ़ा था पढ़ेंगे R plasmid, वन इज़ द कोल प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, दीज आर टॉक्सिन्स एंड डू नॉट अलाउ द सराउंडिंग बैक्टीरिया टू ग्रो, ठीक है। आर प्लाज्मेट एज वी कैन रिमेंबर रेजिस्टेंस प्लाज्मेट, इसमें दो चीज़ होती है, एक तो RTF होता है, दैट इज़ RTF दैट इज़ रेजिस्टेंस ट्रांसमिट फैक्टर, फैक्टर क्या है, फैक्टर प्लाज्मिड होता है, एंड इसके साथ R डिटर्मिनेंट होता है। अब एक ही प्लाज्मिड में मोर देन वन R डिटर्मिनेंट कैन बी प्रेजेंट, दैट इज दीज आर द जीन्स दैट कोड फॉर द रेजिस्टेंस टू वन ड्रग, ठीक है। एंड एक RTF एक रेजिस्टेंट फैक्टर में मोर देन वन R फैक्टर कैन बी प्रेजेंट, R डिटर्मिनेंट कैन बी प्रेजेंट। तो अपन कह सकते हैं कि R फैक्टर में दो चीज़ें हैं, वन इज़ द RTF एंड अनदर इज़ द R, ठीक है। सो RTF इज़ द प्लाज्मिड एंड R इज़ द डिटर्मिनेंट विच डिटरमाइंस द रेजिस्टेंस टू द ड्रग, ठीक है। सो RTF प्लस जीन फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज द कॉमन मैकेनिज्म ऑफ द antibiotic resistance. Now moving next, HFR. One thing more, हमने ट्रांसडक्शन पढ़ा था। Now transduction is the most common method of gene transfer, ठीक है। Now transduction is the most common method of genes transfer, but conjugation is the most common method of the antibiotic transfer, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एंड वी हैव टू रिमेंबर कि जो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जिस जीन ट्रांसफ़र इज़ ट्रांसडक्शन, लेकिन एंटीबायोटिक का मोस्ट कॉमन कॉन्जुगेशन। नाउ कमिंग टू द HFR, नाउ HFR क्या होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इसके पास अपना F प्लाज्मेट है और अपना क्रोमोसोम भी है, लेट मी क्रोमोसोम भी लाइक दिस। तो क्या कई बार क्या होता है, एपिसोम क्या बताया था, F प्लाज्मेट प्लस द बैक्टीरियल क्रोमोसोम फॉर्म्स द एपिसोम, सो इट विल फॉर्म द एपिसोम। क्या होगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ ये F फैक्टर भी जुड़ गया, F प्लाज्मेट भी जुड़ गया, सो इट इज़ नाउ एपिसोम, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दूसरे बैक्टीरिया नेबरहुड बैक्टीरिया के पास थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब, बिकॉज इट इज़ F पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेनिंग द F प्लाज्मेट, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये जाना चाहेगा, बट ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस सिर्फ ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल है सिर्फ थोड़ा बहुत ये जा पाएगा, एंड द F फैक्टर विल नॉट बी एबल टू ग्रो, ना ही पूरा का पूरा क्रोमोसोम जा पाएगा, ओनली अ लिटिल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विल बी एबल टू गो, सो एंड टू द नेक्स्ट बैक्टीरिया थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब, क्योंकि या तो कॉन्जुगेशन ट्यूब टूट जाते हैं या कोई अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, सो इट वॉन्ट बी एबल टू कम्प्लीटली मूव टू द नेक्स्ट बैक्टीरिया। सो द नेक्स्ट बैक्टीरिया, ये पुरानी बैक्टीरिया तो इट विल स्टिल रिमेन द F पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड द न्यू बैक्टीरिया विल बी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, ठीक है।
So this was about the HFR. Now F factor being a plasmid may indicate with bacterial chromosome, जिसको अपन ने कहा था एपिसोम, और such donor cells are able to transfer the chromosome at a high speed, high frequency, therefore इसको अपन कहते हैं HFR cells, that is high frequency of recombination. During conjugation, F cells with an F negative cell, only few chromosomal genes along the part of the F factor may get transferred, and the connection is usually broken when before the whole genome can transfer, right? As the entire F factor do not get transferred, hence the conjugation F recipient cell do not becomes the F positive cell. So it is it can be easily remembered by the diagram कि पहले तो bacterial chromosome के अंदर plasmid जुड़ा, form this episome will try to move to the next bacteria, but due to the unfavorable environment the conjugation tube will break and only a part of the F factor and the chromosome will be able to transfer and will combine with the bacterial chromosome. So bacteria, नया bacteria recombinant तो बन गया है, लेकिन it cannot be F positive क्योंकि F factor तो पूरा transfer ही नहीं हुआ. So therefore the bacteria, what will the combination be like? The HFR plus F negative bacteria will form HFR plus recombinant bacteria. Okay, so this was about the HFR conjugation. अब अपन बात करते हैं सेक्स डक्शन की. नाउ सेक्स डक्शन में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया है अपनी, ठीक है. अब अपन ने HFR देखा. HFR क्या आता है? एपिसोम है HFR, और एपिसोम क्या है? ये तो बैक्टीरियल है और ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, ठीक है. F फैक्टर है, ठीक है. तो ये पूरा का पूरा एपिसोम हो गया और यही HFR है, ठीक है. अब क्या होगा? अब बैक्टीरियल प्लाज्मिड के मन में आया टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, तो दिस विल टेक अवे दिस पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम. सो बैक्टीरियल क्रोमोसोम विल बी अगेन सेम लाइक दिस, बट the HFR will take away some properties and some part of the chromosome of the bacteria. So this is the HFR plus the part of the bacterial chromosome that was taken away. अब ये जाके conjugation, अब दूसरे बैक्टीरिया है, सेम वही conjugation ट्यूब बनाएगा, ये पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा. Therefore this process is what? Sex duction, and this factor is known as the F prime. ठीक है. Now this is what it is about कि bacteria with F element and F element integrated into the bacterial genome, and the breakage at the point of contact, that is यहाँ से break हो गया and it will carry away the chromosome of the bacteria. So F element excised contains the bacterial gene, but part of its own DNA is also left behind. As you can see, this part is also left behind. So this F positive element containing a segment homologous to the main genophore may participate in the reciprocal recombination, but the next bacteria will not be converted into the F positive cell, but the bacteria will be called as the F prime bacteria. ठीक है. So this is how the sex duction works. Now F prime conjugation, when the F factor reverts back from the integrated free step, it may sometimes carry with it some chromosomal DNA from the adjacent site of attachment. Now this is called known as the F prime factor, and when conjugation takes place, the F prime factor is transferred from one bacteria to another, and therefore the recipient cells also becomes the F prime factor. ठीक है. Now this was about the conjugation. देखो conjugation में तो क्या होता है, पूरा पूरा F प्लाज्मिड ही ट्रांसफ़र होता है. फिर HFR आता है. HFR में क्या होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ खुद का प्लाज्मिड होता है, कोशिश करता है ट्रांसफ़र होने की पूरा का पूरा, लेकिन ओनली अ पार्ट कैन ट्रांसफ़र. और सेक्स डक्शन में क्या होता है कि पहले तो सेपरेट होता है, फिर ट्रांसफ़र होने की कोशिश करता है. सो दिस इज अबाउट द बेसिक मेन डिफरेंसेस. नाउ फर्स्ट रिवाइजिंग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सो दैट वी आर एबल टू डू द क्वेश्चन आंसर एज वेल. Now as I told you, capsule, what was the sorry, okay,
ओके सो ठीक है, एक तो कैप्सूल की हमने बात की थी, कैप्सूल वेल डिफाइंड पॉलीसेक्राइड लेयर होती है, एक्स्ट्रा वॉल होती है, तो वायलेंस होती है, एंटीजेनिक होती है, एक्सेप्शन बेसिलस एंथ्रासिस है, इसमें पॉलीपेप्टाइड नेचर की वॉल होती है, रिएक्शन जो होता है वो क्विलिंग रिएक्शन होता है, एंड द रिएक्शन इज क्विलिंग बिकॉज स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आर गिवन, और एंटीबॉडीज़ के प्रेजेंस में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और स्वेलिंग हो जाएगी कैप्सूल की, बिकॉज कैप्सूल इज एंटीजेनिक इन नेचर. नाउ important capsulated bacteria can be joined by the mnemonic. Yes, some bacteria have killer and the mean capsule, and Yersinia, Streptococcus, Bacteroides flagellis, H. influenza, Klebsiella, Anthrax bacillus, Neisseria, meningitis and the Clostridium. इसके अलावा Cryptococcus भी capsulated है, and also Pseudomonas. Now, Bacteroides fragilis is vitrionic capsule, and Bordetella pertussis have non-ionic capsule, this non-antigenic capsule. Glycocalyx में क्या होता है, well defined और ill defined. well defined है तो capsule होगा, ill defined होगा तो slime layer that will form the biofilm that helps in the addition as well as the violence factor. Now, what are the examples? These are the examples of the Glycocalyx, that is Streptococcus mutans, Epididymis and Pneumococcus aeruginosa. Now coming to the flagella. Flagella is an important organ of locomotion. Flagellum protein का बना होता है, filament होगा, basal body होगा, and gram positive है, therefore will be present in the प्लस साइन किससे बनता है, ऐसे और ऐसे दो डंडों से, therefore ग्राम पॉजिटिव, राइट. और तो दो ही रिंग होगी, एन और एस, जबकि एम एस पी एल किस में होगा, ग्राम नेगेटिव में. नाउ फ्लैजुलर डिस्ट्रीब्यूशन, मोनोट्राइकस इज प्रेजेंट इन Pseudomonas, Lophomatha tuft that is present in the H. pylori, Campylobacter, Amphitrachus that is present in the Campylobacter, and the Bacillus, Clostridium, all anterior bacteria see they will show the Peritrichus, but sessile is rigid, that is Salmonella, Gallinorum, Shigella, Yersinia और atypical E. coli और एंट्रोइन्वेजिव E. coli. Salmonella पूरा तो मोटाइल होता है, बट Salmonella Gallinorum is नॉन मोटाइल. ना बैक्टीरियल मोर्टिलिटी इज इंपॉर्टेंट. अगर कॉस्क्रू मोर्टिलिटी है तो कौन शो करेगा, ट्रिपनोम पैलिडियम. एंड डार्टिंग मोर्टिलिटी है, दैट विल शो बाय द विब्रो कॉलरे एंड द कैम्पाइलोबैक्टर. स्टैटली कैन बी रिमेंबर्ड, Salmonella, SAS, gliding is remembered, tumbling LI, that is Listeria, twitching by Echinella, and swarming by the Clostridium, Proteus and Bacillus cereus, that is TPC से याद रख सकते हैं हम. Now pili is also made up of the protein subunit, that is pyelin. Pyelin pili दो तरह के होते हैं, one is the common and another is a sex pili. Now sex pili we have seen takes part in what, conjugation, and the common takes part in the addition. As you can these are the pili structures that help in the addition of the bacteria to the surface, right. Now L form of bacteria क्या होता है, सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया होते हैं. दिया किसने था, ग्रिफिथ ने दिया था. दिया किस पे था, स्ट्रेप्टोबैसिलस, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द रेड वाइट फीवर, and it is non-pathogenic and can seen by the naked eye, and both stable and the unstable form are present, and they can be generated in the laboratory as well, and they can arise spontaneously as well. Now spore are two types, one are the this bulging and non bulging. Can be remembered कि bulging B में नहीं है, मतलब कि bulging bacillus में नहीं है, तो bulging clostridium में है, and bulging में bacillus में non bulging है. So this is bacillus and this is the clostridium. Now moving next to the spore structure. Now spore structure as you see, सबसे अंदर core होता है. core का मतलब भी deep, that is innermost, that is the core, and core have very important feature. इसके पास calcium, dipicolinate and the glycolytic enzymes, so they provide the heat resistance. ठीक है. अनदर आता है स्पोर वॉल इज द टिपिकल पेप्टिडोग्लाइकन. वॉल से याद रख सकते हैं, ऊपर से टिपिकल पेप्टिडोग्लाइकन है तो इट विल फॉर्म्स द फ्यूचर सेल वॉल. अनदर इज द स्पोर कॉर्टेक्स, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन दैट इज एटिपिकल, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इट इज द थिकेस्ट लेयर. नाउ स्पोर कोट एंड एक्सोस्पोरियम. स्पोर कोट shows the chemical disinfection. Now
प्लाज्मिड क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, वो ज़रूरी नहीं कि एक ही बैक्टीरिया में एक ही प्लाज्मिड हो, मोर देन वन प्लाज्मिड कैन बी प्रेजेंट अप टू 40 एंड दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोम. They are not important for the survival of the bacteria, but yes, they have the, if the bacteria has the plasmid, they have the additional features, right? Now plasmid और chromosome को मिला के we call it as the episomes. Classification is based कि F plasmid, that is the fertility plasmid or the sex plasmid, and that have ability to transfer the plasmid by the replicating its own plasmid and transferring the plasmid to another bacteria. लेकिन ये तब भी होगा जब उस बैक्टीरिया, जब जिस बैक्टीरिया के पास plasmid है उसके पास TRA genes भी हो तो. Right, now another is the resistant plasmid that provide resistance to the antibiotics, that is the beta lactam antibiotics, fluoroquinolone or aminoglycosides. Another is the cold plasmid that forms the bacteriocin formation and inhibit the growth of the similar bacteria into the same environment by releasing the toxins, right? And another valence plasmid that have the valence factor. Now plasmid as a vector has been used in the genetic engineering to transfer the DNA material from one host to another. Now the cold plasmid we have seen कि cold plasmid क्या होता है, colicin बनाएगा. colicin क्या होता है, bacteriocin that are proteins that inhibit the growth of the similar bacteria in the environment for the survival of the fittest or survival of the bacteria. Now gene transfer दो तरह की होती है, तो vertical, horizontal. vertical मतलब कि mother to offspring and horizontal मतलब one bacteria to the another surrounding bacteria. Transformation is directly uptake of the genetic material from the environment that has been released by the dying bacteria and जो जिनके पास ability transformation की, that are competent bacteria, ठीक है, that have the ability to take the free DNA that is lying in the surrounding given by the Griffith on the pneumococcus or Streptococcus pneumococci. Now by the bacteriophage we have seen या तो lytic cycle है या lysogenic cycle है. lytic में क्या होगा, lysis of bacteria and it is shown by the T1 and T2 phase of E. coli and just the host DNA is taken, host DNA material and the host metabolism is taken away by the phage DNA and they form the daughter virions after releasing after lysis of the bacteria. Lysogenic is shown by the lambda phage and this will cause the prophage formation, that is the phage DNA and the bacterial DNA is called as the prophage, causing the lysogenic conversion of the bacteria and this is transferred to the offsprings. Okay, and in case of unfavorable condition या फिर UV light में this will convert into the lytic cycle causing the lysis of the bacteria. अब transduction क्या था when the bacterial phage DNA forms the new daughter virions, it takes away the fragmented pieces of the bacteria and these pieces of the bacteria, recipient bacteria, is transferred to the next bacteria. Okay, when the phage DNA will infect. So this is the transduction and it is a mispackaging क्योंकि होना नहीं चाहिए था. Bacterial phage DNA was not to take up the host DNA material but it do takes up, so it is mispackaging or the defective errors. But in case it takes the DNA of the bacteria only from the adjacent site where it was incorporated, it will be the specialized transduction. Now for the drug resistance, transduction is used. Transduction is the most common method of the gene transfer while antibiotic resistance conjugation. ठीक है. Now phage mediated this endotoxin that are A, B, C, D, E, that is group A Streptococcus, botulism toxin, cholera, diphtheria and enterohemergic E. coli and the Shiga toxin. Now लाइसोजेनिक वी हैव ऑलरेडी टॉक कि जो फेज डीएनए जब बैक्टीरियल डीएनए के साथ एडरेंट हो जाएगा इनकॉर्पोरेट एंड सेम इनकॉर्पोरेटेड होल जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग्स एज वेल, द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज द लाइसोजेनिक बैक्टीरिया दैट एक्वायर्स द न्यू कैरेक्टर्स. सो दिस इज अबाउट, ये खुद का बैक्टीरिया का डीएनए है. फेज डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड एंड ट्रांसफर्ड, इट इज लाइसोजेनिक कन्वर्जन and it is lysogenic bacteria. Now moving next, conjugation was given by the Lidegaard and Tatum किस पे, E. coli पे.
ठीक है, एंड इट इज़ मीडिएटेड बाय द सेक्स पिलाई कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिनके पास कॉन्जुगेशन ट्यूब है, जिनके पास एफ प्लाज्मेट है, वही कॉन्जुगेशन ट्यूब बना पाएंगे एंड रेप्लिकेट द प्लाज्मेट फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया कॉजिंग दिस एफ नेगेटिव बैक्टीरिया टू द एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट इज कंटेनिंग द फर्टिलिटी प्लाज्मेट. सो दिस वॉज अबाउट आर प्लाज्मेट में दो चीज़ें होती है, आर टी एफ होता है, आर डिटर्मिनेंट होता है. आर डिटर्मिनेंट मीन्स कि ड्रग रेजिस्टेंस के लिए जो जीन है, एंड आर टी एफ इज़ द प्लाज्मेट that will have the transfer the genetic material for the drug resistance. Okay, so the R resistance factor consists of RTF and the R determinant. So HFR क्या हुआ कि जब bacterial plasmid and the bacterial chromosome this will combine, it will form the episome, और इस पूरे को अपन कहेंगे HFR. ठीक है, पूरा HFR will try to move to the another bacteria through a conjugation tube, but the conjugation tube will break out and only a part of the bacterial chromosome and only a part of the F plasmid is able to move. So another bacteria will not be converted into the F positive. This will only be the recombinant bacteria. ठीक है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द डिटेल एंड फिर से समझना है देन प्लीज स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग. बहुत अच्छे से समझा है. सो दिस इज़ द HF, दिस इज़ हाई फ्रीक्वेंट, दिस इज plasmid and this is the bacterial chromosome. They combine and form the episome. The episome, the HFR tries to move to the another bacteria, but conjugation tube breaks out, only a part of the chromosome and the F plasmid is moved. So therefore bacteria becomes the recombinant but not F positive. राइट. सो व्हाट इज सेक्स डक्शन. अब क्या हुआ कि जो HFR बन गया था, ये पूरा HFR बन गया था. ठीक है, ये बैक्टीरिया क्रोमोसोम है, एफ प्लाज्मेट है, ये अलग होना चाहेगा, अलग होना चाहेगा, खुद का एक पार्ट छोड़ेगा और बैक्टीरिया का पार्ट लेगा. सो as you can see, F plasmid, part of F plasmid is intact and a part of the bacterial chromosome is taken away by the F plasmid. Now this F plasmid will try to move to another bacteria through conjugation tube and it will move and it will pass away the characters, but the bacteria will not turn out of the F plasmid because पूरा F plasmid तो move हुआ नहीं और साथ में कुछ chromosomal part भी that have also been moved to the another bacteria. So and this is what known as the F prime factor and the bacteria is known as the F prime bacteria. So this was the was about the. Now let's do the question. The most important method of the gene transfer. Now the most important method of the gene transfer is the vertical transfer, that is from the mother to the offsprings. Although the lateral gene transfer methods we have seen, but the most common is the vertical. Now method of the genes transfer bacteria by the physical contact. This is what transformation. Transformation में क्या होता कि directly uptake of the genetic material from the environment that have been released by the another dying bacteria. जिनके पास ability होती है ऐसी, उसको उसपन क्या बोलते हैं, competence or the competent bacteria. Right. Now moving next, so the answer will be C. Now bacteriophage are the virus that infects bacteria. So answer will be B, that is they are virus that infect the bacteria. Depending lytic cycle में जाएगा, lysogenic cycle में जाएगा, transduction में जाएगा, कौन सा specialized या फिर generalized. Now Griffith experiment was on the Streptococcus pneumococci or the pneumococcus for the transformation, right. Okay, now moving next, first example of the gene transfer was given on the pneumococcus and the first example of restricted transduction on the E. coli. Lysogenic conversion example one is the Corynebacterium diphtheria. First example of conjugation is E. coli K12 strain. We have seen कि E. coli K12 strain पे ही demonstrate किया था Liederberg and Tatum ने, that is conjugation. And this is important to remember. One is the pneumococcus, another is the Corynebacterium diphtheria is an example of the lysogenic conversion, and the E. coli K12 strain. Now transfer of the genetic material by the bacteriophage. This is very important, easy. Transformation का मतलब कि uptake by the physical contact. Transcription में तो
कुछ बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड कुछ है नहीं. इंटीग्रेशन इज वी हैव नॉट स्टडीड. तो आंसर ट्रांसडक्शन, that is a transfer of the genetic material by the bacteriophage. Transduction भी दो, या तो specialized या generalized. Now bacteria used in the Griffith, this is again simple, that is Streptococcus pneumococci, but it is what? Capsulated, because Streptococcus pneumococci and A, B, C, D group of Streptococcus are capsulated. Also 80% of E. coli are also capsulated. Now pick the true statement regarding the plasmids. Non-self-replicating, no, they are self-replicating. Act as the messenger RNA, involved in the conjugation, involved in the transformation. Transformation the direct uptake by the physical contact, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है. So they are involved in the conjugation and formation of the conjugation tube. Mechanism of direct transfer of the free DNA, this is again simple, that is a transformation, because direct transfer यहीं पे ही होता है. Conjugation में conjugation tube मिलती है. Transduction is through the bacteriophage and directly by the transformation. Horizontal transmission of R factor is by, that is we have seen through the plasmid, and plasmid takes part in the conjugation, therefore conjugation. Okay, so thank you for today's session, and please do use my code, that is Muskan, to get the discount on the NEET-PG subscription. And I hope that I made the topic clear. And in case you are working, so be safe at your workplace, and in case you are not studying at home, be safe at your home and study well. So there, due to some Wi-Fi connection, I had to take the premier recorded session क्योंकि बारिश हो रही है and there's the Wi-Fi is going down. So and thank you for today's session.